السلام علیکم ناظرین، ہائی ٹیک نیوز کے خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ نارا بھونیشوری کا تلگو دیشم پارٹی کے کارکن کو مشورہ۔ نارا بھونیشوری نے پنجولار پاڈو گاؤں سروپلی حلقے وینکٹاچلم منڈل میں کارکن ارانی نارائن ریڈی کے خاندان سے ملاقات کی۔ نارائن ریڈی جو دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے تھے، چندر بابو نائیڈو کی غیر قانونی گرفتاری کو برداشت نہیں کر سکے۔ نارا بھونیشوری نے نارائن ریڈی کے اور تصویر کو خراج عقیدت پیش کیا اور بھونیشوری نے یقین دلایا کہ نارائن ریڈی کے اہل خانہ کی مدد کی جائے گی۔ گچی بولی میں حقہ مراکز پر مادھو پور ایس او ٹی پولیس کے چھاپے۔ خلاف ضابطہ حقہ سینٹر چلانے والے منتظمین۔ گچی بولی پولیس نے گچی بولی میں اسکائی کیفے حقہ سینٹر کے مالک عبدالفرید اور دیگر 6 افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے۔ ملزمان سے 9 حقے کے پوڈز، 4 موبائل فونز بھی برآمد کر لیے گئے۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ ای ڈی نے BRS کے رکن کونسل کے کویتا اور ان کے سسرالی رشتہ داروں کے مکانات کی تلاشی لی۔ کویتا دہلی شراب سکیم معاملے میں فی الحال مرکزی ایجنسی کی تحویل میں ہے۔ ای ڈی کی 7 ٹیموں نے اس کارروائی میں حصہ لیا ہے۔ ہفتے کی صبح 6:40 پر اس چھاپے کی کارروائی کی شروعات ہوئی۔ بندوق بردار ڈاکوؤں پر ٹوٹ پڑنے والی بہادر ماں بیٹی سے مرکزی وزیر جی کشن ریڈی نے ان کے گھر پہنچ کر ان سے ملاقات کی اور چور کا مقابلہ کرنے کی ہمت دکھانے والی ماں بیٹی کو مبارکباد دی۔ واضح ہے کہ سشیل کمار اور پریم چندر نامی 2 ملزمین جو اتر پردیش کے کانپور سے تعلق رکھتے ہیں، بیگم پیٹ علاقے کے ایک خاندان کے گھر میں ڈکیتی کی غرض سے داخل ہوئے۔ منصوبے کے مطابق سشیل نے گھر کی مالکن امیتا مہنود کو آواز دی اور اسے بتایا کہ وہ این کے جین کے نام سے ایک کوریئر لائے ہیں۔ جیسے ہی ان کی ملازمہ کوریئر لینے کے لیے نیچے آئی، ملزم پریم نے اس کے گلے پر چاقو رکھ کر اور اسے کچن میں لے گیا۔ اس دوران امیتا کی بیٹی نیچے آئی، اس کے اور سشیل کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ اسی دوران امیتا بھی وہاں پہنچ گئی۔ جھگڑے کے دوران سشیل نے اپنے بیگ سے دیسی ساختہ تفنچا نکالا اور ماں اور بیٹی پر تان دیا۔ امیتا جو مارشل آرٹ سے اچھی طرح واقف ہیں، انہوں نے سشیل کو لات مار کر سشیل کے ہاتھ سے بندوق چھین لی۔ ماں بیٹی اس پر ٹوٹ پڑے، جس کے نتیجے میں سشیل گھر سے بھاگنے پر مجبور ہو گیا، جبکہ دوسرا ملزم جو گھر کے اندر موجود تھا اسے مقامی افراد کی مدد سے پکڑ لیا۔ بعد ازاں ان دونوں ملزمین کی گرفتاری عمل میں آئی۔ مرکزی وزیر کشن ریڈی نے بستی کے دورے کے حصے کے طور پر سکندرآباد حلقے کا دورہ کیا۔ اس دورے کے دوران کالونیوں کے ہر قدم پر کشن ریڈی کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ خواتین کالونی کے عمائدین اور گاؤں کے معززین کشن ریڈی کو دیکھنے آئے اور انہوں نے مختلف فلاحی انجمنوں کے اراکین کے ساتھ کچھ تفریحی وقت بھی گزارا۔ بستی یاترا جو چلکل گڑا سے شروع ہوئی، کالونی کے بزرگوں کا استقبال کے ساتھ ختم ہوئی اور آگے بڑھ کر ان کے ساتھ تھوڑی دیر ٹینس بھی کھیلا۔ اس کے بعد انہوں نے باپنا بستی کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے بدھا نگر میں مقامی لوگوں سے بات کی اور پھر سیتافال منڈی کے راستے اشوک نگر سنجیو پورم کا بھی دورہ کیا۔ اکھل بھارت یوجنا سمیکھیا AIYF کے ریاستی جنرل سیکرٹری کے دھرمیندر نے کہا ہے کہ مطالبہ کیا ہے کہ ہم بھگت سنگھ کے لڑنے والے جذبے کے ساتھ جنوبی طاقتوں کو شکست دیں اور مودی کو شکست دیں، جنہوں نے ہر سال 2 کروڑ نوکریاں دینے کا وعدہ کر کے بے روزگاروں کو دھوکہ دیا۔ اور AIYF حیدرآباد ضلع سمیتی کے زیر اہتمام بھگت سنگھ راجگرو اور سکھدیو کی 93ویں یوم پیدائش کو منانے کے لیے ہمایت نگر کے ستیہ نارائن ریڈی بھون سے لے کر رام کوٹ میں بھگت سنگھ کے منشیات کا خاتمہ، انقلاب زندہ باد مجسمے تک کیا اور بھگت سنگھ امر ہے کے نعروں کے ساتھ نوجوانوں کی ایک بڑی ریلی نکالی گئی۔ اس موقع پر AIYF کے ریاستی جنرل سیکرٹری کے دھرمیندر نے کہا ہے کہ ہندوستان کی جدوجہد آزادی میں بھگت سنگھ کے کردار کو پورا ملک فراموش نہیں کر سکتا۔ بھگت سنگھ ایک انقلابی شخصیت تھے جنہوں نے 12 سال کی کم عمری میں تحریک آزادی میں حصہ لیا اور قربانیاں دی۔ سائبرآباد کے حدود میں 13 مئی کو ہونے والے ہاؤس آف پیپل لوک سبھا 2024 کے انتخابات کے شیڈول کے اعلان کے پیش نظر
अविनाश मोहंती IPS कमिश्नर ऑफ पुलिस साइबराबाद ने साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट में रेवेन्यू एक्साइज GST महकमा इनकम टैक्स के अहदेदारों के साथ कोऑर्डिनेशन मीटिंग की। इजलास में मरबूत निफाज की मुहिम की जरूरत पर जोर दिया गया। उन्होंने गैर कानूनी शराब, गांजा, कीमती धातें, नकदी वगैरह की जब्ती का जायजा लिया और शराब और मंशियात की गैर कानूनी ज़ख़ीरा अंदोज़ी और नकल व हमल को रोकने के लिए हिकमत अमलियों और तवज्जो के शोबों के बारे में भी तबादला ख्याल किया। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर कम कलेक्टर्स रंगारेड्डी और मिर्चल अजला ने तेलंगाना स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली 2023 में पोस्टल बैलेट के अमल के बारे में वजाहत की। 2024 का इलेक्शन तारीख का सबसे आमिराना होने जा रहा, क्योंकि शहंशाह लफ्ज़ी तौर पर खौफजदा हैं। हुक्मरान जमात पागल कुत्ते की तरह इधर उधर भाग रही है और मजीद गैर कानूनी सरगर्मियां कर रही है। हुकूमत सोचती है कि हिंदुस्तानी बेवकूफ हैं। उनका दिमाग SBI फंड घोटाले से लेकर इस नए केजरीवाल या कांग्रेस के बैंक अकाउंट में जा सकता है। उम्मीद है कि ये दोबारा हमेशा की तरह मंदिर, मस्जिद और कुछ दूसरे मजहबी फसादात के मसाइल पर खत्म हो जाएंगे। 17 से 21 मार्च तक गच्चीबौली की पलेला गोपीचंद बैडमिंटन एकेडमी में मुनाकिदा ऑल इंडिया पुलिस बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023-24 में P कासिरेड्डी, जो रचकुंडा कमिश्नरेट के तहत वनस्थलीपुरम के ACP ऑफिसर के तौर पर खदमात अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने मर्दों के सिंगल्स जुमरे में कांसे का तमगा जीता। रचकुंडा कमिश्नर तरुण जोशी IPS ने इस मौके पर मुबारकबाद दी। कमिश्नर ने कहा कि मुस्तकबिल में मजीद मेडल्स जीते जाएंगे और इसके लिए जरूरी हौसला अफजाई की जाएगी। लड़की की इस्मत दरी करने वाले CI के खिलाफ पॉक्सो केस दर्ज किया गया है। भीमर राम, जो इस वक्त भोपालपल्ली VRC के तौर पर काम कर रहा, भंडारी संपत ने 2022 में काकतिया यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन हदूद में SI के तौर पर काम किया था। इस वक्त वो हनमकुंडा के एक कॉलोनी के एक खातून के साथ राब्ते में आया और मुबाशरत हो गया। बाद में उसने उसके साथ अपनी दोस्ती जारी रखी। हालांकि उसका बतौर CI जिले खम्मम में तबादला कर दिया गया। हाल ही में जयशंकर भोपालपल्ली जिले में VRCI के तौर पर ट्रांसफर पर आए थे। गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान उसने खातून की 16 साल बेटी पर भी नजर डाल दी। ये देखकर उसने इसकी इस्मतदरी की। लड़की की मां ने मामला पुलिस स्टेशन में जाहिर किया और शिकायत दर्ज करवाई। CI की जायदाद की इस्मतदरी के साथ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किए गए। महबूबाबाद तेलंगाना में बदउनवान सब रजिस्ट्रार और रिटायर्ड एंट्री ऑपरेटर पकड़े गए हैं। ACB को डेटा एंट्री ऑपरेटर के पास से 1.7 लाख रुपए के बेहिसाब नकदी मिली है। इंसदाद बदउनवानी ब्यूरो ने महबूबाबाद सब रजिस्ट्रार ऑफिस में सब रजिस्ट्रार तस्लीमा मोहम्मद और इसी दफ्तर में डेटा एंट्री ऑपरेटर आउटसोर्सिंग को शिकायत कुनिंदा से 19,200 रुपए रिश्वत लेने के इल्जाम में गिरफ्तार किया, ताकि शिकायत कुनिंदा की तरफ से दानतला पल्ली गांव में खरीदी गई अराजी के रजिस्ट्रेशन के काम पर कार्रवाई की जा सके। सुनील डिम्पल ने अपने MP के इंतखाबी मंशूर में जम्मू कश्मीर की रियासत के आर्टिकल 370-35A बहाली इल्हाक की शराइत को शामिल करने की अपील की। डिम्पल ने जम्मू कश्मीर की तमाम सियासी जमातों से अपील की है कि वो MP के उम्मीदवारों के इंतखाबात में हिस्सा लें। मंशूर में आर्टिकल 370-35A को शामिल करें। शहीद आजम भगत सिंह जी का शहीदी दिवस है और इन महान शख्सियतों की वजह से ही हमारे भारत को आज़ादी मिली थी। यहाँ पे बड़ा अच्छा जीवल चौक में आज हमारे शहीद आजम भगत सिंह फाउंडेशन की तरफ से और बड़े हर मजहब के लोग यहाँ पे आए हैं। डॉक्टर तरण सिंह जी, शर्मा साहब, नीरज गुप्ता जी, अमित जी, ब्रिज डोगरा साहब। लेकिन एक बात तरुण जी मैं आज ये यहाँ पे से कहना चाहता हूँ। आज शर्मा साहब, मैं ये एक जगह ढूंढ रहा था कि यहाँ से मैं एक पैगाम पूरे देश को, पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम को भेजना चाहता था और ये पैगाम थोड़ा सच्चाई भी है, किसी को बुरा भी कड़वा लग सकता है, लेकिन मैंने कहा कि ये पैगाम ऐसी जगह से, ऐसे मौके के ऊपर, ऐसे समय पे भेजना चाहिए जिसमें
ना तो राष्ट्र विरोधी होने का इल्जाम लगे और ना ही भ्रष्टाचार होने का इल्जाम लगे। आज डॉक्टर साहब, मेरे बाकी साथियों, भारत किस तरह से, किस दौर से गुजर रहा है, पूरा भारत आज परेशान है। क्या भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी जी ने क्या इस दिन के लिए, इस दौर के लिए यह कुर्बानियां दी थी, या ये शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव हंसते हंसते फांसी के फंदे के ऊपर चढ़ गए? क्या उन्होंने इस दिन के लिए कुर्बानियां दी थी? उस समय हिंदू, मुस्लिम, सिख, तमाम मजहबों के लोगों ने आजादी की जंग में लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी, और ऐसे लोग भी थे जिन्होंने कोई कुर्बानी, आजादी की लड़ाई में उनका कोई योगदान नहीं रहा है। तो आज मुल्क की क्या हालत हो गई है डॉक्टर साहब? कैसे मजहबों के नाम के ऊपर पूरे देश को कमजोर किया जा रहा है। आज अगर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ये हमारे शहीद आजम होते तो उन्हें सबसे बड़ा दुख होता कि भारत को मजहबों के नाम के ऊपर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तमाम मजहबों के नाम के ऊपर बांटा जा रहा है। बड़ा अफसोस हुआ। मैंने कहा ये मौका, ये मुझे यहीं पे पिछले 25 सालों में शहीद आजम भगत सिंह फाउंडेशन, यहाँ पे ये कार्यक्रम जीवल चौक में बहुत बड़ा विशाल प्रोग्राम करती है, तो यहीं से ये पैगाम मैं जरूर भेजूंगा कि मेरे जम्मू कश्मीर के हालात भी 5 अगस्त 2019 के बाद उदरीत जी, अमित जी और आप गवाह हैं इसके, सभी यहाँ जो बैठे हुए हैं, कि हमारी 200 साल पुरानी रियासत को तोड़ करके ममलेसी यूनियन टेरिटरी बना, हमारी रियासत जो हमारे बुजुर्ग तमाम मजहबों के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, चिनाव वैली, पीपल, पहाड़ी लोग जो हमें रियासत देकर के गए थे, जो हमें स्पेशल स्टेटस 370, 35 स्टेट सब्जेक्ट देकर के गए थे, आज वो कहाँ है? हमारी जमीनों की हिफाजत कहाँ है? इसलिए अफसोस होता है। मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इस मंच के ऊपर से एक पैगाम भेज रहा हूँ, और आपके माध्यम से अवाम को भी पैगाम भेज रहा हूँ यहाँ से खड़े होकर के इस मौके के ऊपर, कि पार्लियामेंट के चुनाव आ गए हैं। कांग्रेस के मेरे नेता ये यहाँ बैठे हुए हैं, तरुण जी के बड़े करीबी हैं, आप उनको कहना, मैंने ऑल पार्टी का एक गठबंधन बनाया था जिसमें कांग्रेस भी थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, जम्मू के संगठन, कश्मीर के संगठन, सभी बिठाए थे कि मेरे रियासत का दर्जा मुझे वापस किया जाए, हमारा स्पेशल स्टेटस, हमारा 370, 35 स्टेट सब्जेक्ट, हमारी जमीनों की और नौकरियों की हिफाजत की जाए। आज इस मौके के ऊपर मैं फिर आह्वान करता हूं, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, अपनी पार्टी, वो डीएपी और जो जितने भी संगठन, आप जम्मू कश्मीर रियासत के दर्जे के ऊपर अपना स्टैंड क्लियर करें, हमारी जमीनें, हमारी नौकरियों की हिफाजत के लिए अपना स्टैंड क्लियर करें। क्योंकि अगर मैं ये पैगाम, क्योंकि आज देश में अपनी मांगों को उठाने की मांग जब कोई करता है तो उसके ऊपर राष्ट्र विरोधी, भ्रष्टाचारी, ना जाने कैसे कैसे सर्टिफिकेट्स उनको दिए जाते हैं। लेकिन मैंने यही मौका ठीक समझा कि यहाँ से पैगाम देने के बाद ये पता चलेगा कि सुनील डिम्पल जम्मू कश्मीर का बेटा, भारत का बेटा, वो जंग लड़ रहा है जो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और नेताजी सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी जी ने जो लड़ाई लड़ी है। तो मैंने इसीलिए आज मैं यहाँ से फिर दोहरा रहा हूँ कि मेरी रियासत वापस की जाए। और अफसोस एक बात का है, अब देखिए साथियों, कि महाराजा हरि सिंह जी के वंशज जो हैं, उन्होंने आज भी 370 उनके पिताजी के बनाए हुए कानून को तोड़ने की पैरवी की है, ये सियासी मुफाद के लिए। दरबार मूव हमारा वो रोक दिया, उनके वंशजों ने उसका भी स्वागत कर दिया, रियासत चली गई, 370 चला गया, उसका भी स्वागत कर दिया। लेकिन सुनील डिम्पल रुकने वाला नहीं है, ये सड़कों से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक जंग लड़ेगा। और जब तक मेरे बुजुर्गों की विरासत मान सम्मान के साथ पगड़ी वापस नहीं आएगी, मैं रुकने वाला नहीं हूँ। शहीद आजम भगत सिंह अमर रहे, शहीद आजम भगत सिंह अमर रहे, शहीद आजम भगत सिंह अमर रहे।
اب میں संयुक्त किसान मोर्चा के लीडरों ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के लीडरों से नरेंद्र मोदी हुकूमत को बेदखल करने के लिए तैयार होने की अपील की है। संयुक्त किसान मोर्चा की ऑल इंडिया कमेटी की कॉल के हिस्से के तौर पर उन्होंने हैदराबाद के सुंदरिया पार्क के करीब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की तस्वीरों को खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर संयुक्त किसान मोर्चा के रियासती कन्वीनर पाशैया पद्मा, टी सागर, मंडला वेंकन्ना, गौनी अलैया और दीगर मौजूद रहे और इस दौरान जिले मराकज मंडल में कागदास मोमबत्तियां दिखाकर शहीदों को खराज अकीदत पेश किया गया। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।